جی ناظرین السلام علیکم. کل دو اہم ڈیولپمنٹ ہونے والے ہیں، یعنی کل 25 اکتوبر ہے. ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہے سہیل آفریدی صاحب، وہ اپنی پہلی جو پبلک انگیجمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ اپنے ہی حلقے میں اس نے ایک امن جرگہ جو ہے کال کیا ہے، اور اس کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ فوجی آپریشنز مسئلے کا حل نہیں ہے، تو اور کیا حل ہو سکتے ہیں اسی حوالے سے. اور وہ شروعات کریں گے، اچھی باتیں شروعات کریں گے ایک ہی ضلع سے، اور وہ ہے خیبر. اگر خیبر میں کامیاب ہو گئے تو آگے. تو اسی پہ بات کریں گے کہ کل جو امن جرگہ ہوگا اس میں کون کون کس کس کو انوائٹ کیا گیا ہے، کون کون سے موضوعات پہ جو ہے باتیں ہوں گی، اور آیا یہ جو بغیر فوجی آپریشن کا ان کا جو ہے جو ایک بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کتنا جو ہے یہ مؤثر ہو سکتا ہے. اور کل ہی 25 اکتوبر استنبول میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اور وہ ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ISI کے چیف بھی ہے جنرل صاحب، وہ بھی استنبول میں افغانستان کے GDI کے جو سربراہ ہے اور ان کے جو وزیر دفاع ہے ملا یعقوب صاحب، وہ دوبارہ ایک ایسے حالت میں ملیں گے کہ قطر میں جو ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک ہفتہ پہلے، اس میں جو باتیں ہوئی تھی وہ ایک دوسرے کی کنٹراڈکٹ کر رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ معاہدہ خفیہ ہے، اور ملا یعقوب صاحب کہہ رہے تھے کہ خفیہ نہیں ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اور آخر میں کیا کہ یہ جو فوجی آپریشنز کی ایک انالیٹیکل کہ کیا فوجی آپریشن واقعی مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر ہے تو کتنا ہے، اگر ناکام ہوئے تو کیوں ناکام ہوئے ہیں، جو کامیاب ہوئے ہیں وہ کیوں کامیاب ہوئے، اسی حوالے سے بات کریں گے. اور یہ پاکستان کا جو نیا نارمل ہے، پیونیٹیو ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں، یا پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کو اسٹریٹجک کلیئرٹی کہتے ہیں، کہ مزید پاکستان جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے. اور جو جنرل عاصم منیر صاحب کا جو ہارٹ اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ تھا اسی پہ بات کریں گے. تو یہ چاروں موضوعات ہیں، اور آج سے بھی ریلیٹڈ ہے اور کل سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے اس پہ احاطہ کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جب سے جنرل عاصم منیر صاحب نے چارج سنبھالا ہے تو اس نے جو پہلا بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اب ایک ہارڈ اسٹیٹ ہوگا، یعنی وہ سافٹ اسٹیٹ سے نکل آئے گا. سافٹ اسٹیٹ یہ تھا کہ بس کوئی بھی آتا تھا، کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، مذہبی جماعتیں جس طرح TLP کے حوالے سے کے خلاف جو ایکشن لیا گیا، یہ بھی ہارڈ اسٹیٹ کی علامت ہے کہ یہ آپ پروٹیسٹ کرے لیکن وائلنٹ نہ ہو، روڈ نہیں بند کرنا ہے، تو کسی کاروباری لوگوں کو جو ہے تنگ نہیں کرنا ہے. اور اسی طرح باہر کے حوالے سے جو انڈیا کو جو رسپانس دیا تھا، انڈیا بالکل یہ توقع نہیں رکھ رہا تھا کہ ہم جو ہے پاکستان جو ہے کاؤنٹر اٹیک کرے گا، اور وہ اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ آج بھی مودی جو ہے جب سے لیٹا ہوا ہے ابھی تک وہ لیٹ گیا ہے. تو یہ جو پاکستان کی نئی پالیسی ہے یہ افغانستان کے حوالے سے بھی ہے، ہر کسی کے حوالے سے، صرف افغانستان کے حوالے سے نہیں. اب پاکستان مسلسل افغانستان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ آپ کے ہاں جو ہے دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، شدت پسندوں کے ٹھکانے ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں. اور پوری دنیا کہہ رہی تھی، جو کوارڈیلیٹرل میٹنگز ہو رہے تھے، چین بھی کہہ رہا تھا، روس بھی کہہ رہا تھا، ایران بھی کہہ رہا تھا، انٹرنیشنل جو UN سیکیورٹی کونسل ہے وہ بھی اسی پہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. پاکستان نے کاؤنٹر نے بتایا کہ ہم جب پشاور میں DGI-SPR کا جو پریس کانفرنس ہوا تھا 8 کو تھا میرے خیال میں، جس میں اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں سے بھی پاکستان کو خطرہ ہوگا یا پاکستان پہ حملہ ہوگا پاکستان اس کا جواب دے گا. کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے کابل میں جو عبدالحق چارہ ہے وہاں پہ ایک گاڑی کو نشانہ بنایا تھا، اور پاکستان نے اس گاڑی کو اطلاعات یہ تھی کہ اس میں TTP کے جو سربراہ ہے مفتی نور ولی محسود صاحب جو ہے وہ اس میں سوار ہے. افغان سورسز کے مطابق وہ ڈیفینیٹلی اس موقع پہ وہاں تھے لیکن اس گاڑی میں نہیں تھے، یہ افغان سورسز کہتے ہیں. پاکستانی سائٹ کے سورسز کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، اس میں مارے گئے ہیں. ابھی تک کہیں سے کنفرم نہیں. ایک ویڈیو آئی تھی اور وہ بھی بڑی شارٹ کے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اس وقت یہاں خیبر ضلع خیبر کی کسی پہاڑی علاقے میں تھے، اس کی ایک ویڈیو آئی تھی. اب کنفلکٹنگ آئیڈیاز وہ آ رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک 2 دن کی لڑائی چلی، جو افغانستان نے مختلف جو 6-7 جگہوں پہ بارڈر پہ اٹیک کیا، اور اس کے بعد جو پاکستان میں جو میر علی میں ایک چیک پوسٹ پہ حافظ گل بہادر کے جو گروپ کے لوگ تھے اس نے حملہ کیا، ایک سوسائڈ اٹیک کیا جو اس کو ناکام بنایا گیا تھا. لیکن
पाकिस्तान ने सीज़ फायर के बावजूद रिटेलिएट किया और पख्तीका में जो है हाफिज़ गुल बहादुर के जो हाइड आउट्स थे उसको हिट किया। अब ये है कि वहाँ से भी रिपोर्ट्स आए, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हाफिज़ गुल बहादुर उसमें हलाक हो चुके हैं। कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये आज की मौजू का आज के वीलॉग का मौजू नहीं है, लेकिन ये वो प्यूनिटिव डेटरेंस है। पाकिस्तान ने कहा मुझ पर हमला होगा मैं अटैक करूँगा, तो इसमें फिर दो ममालिक इन्वॉल्व हो गए, तुर्की और कतर इन्वॉल्व हो गया। और कतर दोहा में जो उसी दिन हफ्ते का दिन था, क्योंकि जुम्मे के दिन पाकिस्तान ने पख्तीका पे अटैक किया, और वो जो वहाँ पे हुआ था स्पिन बुलदक में जो अफगान फोर्सेस ने अटैक किया था, उसके जवाब में कंदहार में उनके 2 बटालियन के हेडक्वार्टर पे एयर अटैक हुआ और स्पिन बुलदक में हुआ। और फिर उसी दिन काबुल में भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें अफगान के मुताबिक जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो कह रहे बेगुनाह लोग मारे, बेगुनाह है ये तो ज़ाहिर बात है, लोग तो मारे गए हैं। उसके हवाले से भी पाकिस्तान ने बड़ा एक हार्ड स्टांस लिया कि कोई जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो भी पाकिस्तानी बॉर्डर की जो है उसकी इज़्ज़त और उसकी तक़द्दुस को पामाल करेगा उसका जवाब हम देंगे, खा वो इंडिया कर रहा है, खा वो अफ़गानिस्तान कर रहा है, खा जो भी कर रहा है। तो इसी हवाले से फिर कतर में बातचीत हुई, एक मुआहिदा हुआ। मुआहिदे के बाद कुछ ऐसी बातें आ गई कि अगली मुलाकात जो है वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होंगे, और उसमें यही जो कतर के जो इंटेलिजेंस चीफ है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ वज़ीर दिफा, अफ़गानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ वज़ीर दिफा और तुर्की के जो वज़ीर इंटेलिजेंस चीफ है वो होंगे। उसमें जो होगी कि ये जो फैसले किए गए हैं कतर दोहा में, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बात तो हम तो एग्री कर गए कि अफ़गान तालिबान जो है किसी भी पाकिस्तान मुखालिफ तंजीम की हिमायत नहीं करेंगे, ना उनकी सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान भी किसी अफ़गान तालिबान ग्रुप की स्पेशली जो दहशतगर्दी के हवाले से हो या शिद्दत पसंदी के हवाले से वो कोई सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन ये कैसे होगा, किस तरह पाकिस्तान वो देखेगा कि अफ़गान तालिबान वाकई TTP की भी कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है वो और बात है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो इसी हवाले से बात होगी। फिर मॉनिटरिंग के अगर उनकी एक्टिविटीज़ की मॉनिटरिंग की जाएगी, वो अफ़गान हुकूमत कैसे करेगी। फिर यह है कि बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से, बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से अगर पाकिस्तान पे लेट से हमला हो जाते इस दौरान तो पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान किसको रिपोर्ट करेगा, या अफ़गानिस्तान पे होता है और उसको शक हो कि ये पाकिस्तान से हुआ है तो उनके पास कुछ होंगे, शवाहिद होंगे। तो पाकिस्तान के पास अगर शवाहिद है तो क्या वो अमारत इस्लामी को देंगे, फिर कितने दिनों तक वो इंतज़ार करेंगे कि क्या उस पर अमल हुआ है या नहीं हुआ है, फिर वो रिपोर्ट करेंगे कतर को या तुर्की को। तो ये टाइम फ्रेम का भी ये नहीं है कि आज पाकिस्तान ने कहा कि और वो 2 महीना उस पर बैठे रहे कि हम रिस्पॉन्ड कर रहे नहीं, कि क्विक टाइम लाइन जो है इस पर बात होगी। तो ये काफ़ी अहम है जो तुर्की में जो डिस्कशन हो रही है। अभी आते हैं जी, और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो प्यूनिटिव डेटरेंस है मेरे ख्याल में ये काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है, ये पाकिस्तान की जो नई पॉलिसी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके बाद जो है हमलों में काफ़ी हद तक जो है शिद्दत पसंदों के हमलों में काफ़ी हद तक कमी आई है। और उस जिस रफ्तार से वो अटैक्स कर रहे थे जगह जगह पर, जिस रफ्तार से वो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, अभी वो रिपोर्ट्स का तकरीबन 3-4 दिनों से जो है खामोशी है। खामोशी कब तक रहेगी, ये ठीक है या कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये देखेंगे। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक उसमें कमी आ गई है। अभी एक दुक्का छोटे छोटे हो जाते हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं, और ना वो बॉर्डर क्रॉस की कोई रिपोर्टिंग हो गई है। ये एक बड़ी अभी आ रहे हैं जी अमन जरगा जो कल सुहेल अफरीदी साहब कर रहे हैं। देखिए अमन जरगा अच्छी चीज़ है, लोगों के साथ कंसल्टेशन करना, उनको बिठाना, उनकी राय लेना, ये अच्छी बात है। लेकिन जो प्लान है वो ये है कि इसमें ज़िला खैबर जो है उनके अमायदीन होंगे और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे, नौजवानों के नुमाइंदे, मजहबी तबके के नुमाइंदगी होगी, और वो एक लाहे अमल तय करेंगे, उस पर एग्री करेंगे। क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि फ़ौजी ऑपरेशन जो है इस मसले का हल नहीं है। चलो ठीक है, ये हल नहीं है तो फिर क्या है, इस पे बात करेंगे। तो उनका ये है कि हम फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और हम दहशत गर्दों को भी निकालेंगे। तो दहशत गर्दों को अगर आपको याद हो तो तिरा में
एक महीना पहले, कुछ अरसा पहले जो हुआ था, फिर वो कुरान हाथ में लेकर जो उनके पास गए भी थे, तो उनके क्या नताइज आए थे, क्या वो जरगे की बात मान ली थी? इस दफ़ा हो सकता है कि सुहेल अफरीदी साहब के साथ कोई नए मैकेनिज़्म हो, कोई नए लाहे अमल हो, तो वो देखा जाएगा। और इसको बाद में उनके मुताबिक जो है दीगर इलाकों में भी एक्सटेंड किया जाएगा। और उनके मुताबिक उनका जो बयान आया था उसे 1-2 दिन पहले, उसमें यही कहा गया था कि जितने फ़ौजी ऑपरेशन हुए हैं वो नाकाम हुए हैं और ये मसला जो है फ़ौजी ऑपरेशन से हल नहीं हो सकता। अभी यहाँ तक तो बात ठीक है कि फ़ौजी ऑपरेशन किसी मसले का परमानेंट हल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कहना कि फ़ौजी ऑपरेशन नाकाम हुए, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीपिंग स्टेटमेंट लग रही है। यस, फ़ौजी ऑपरेशन हुए, उसके बाद भी दहशतगर्द आए हैं, ये एक सिलसिला चलता आ रहा है, कुछ मुआहदे भी हो जाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि सारे ऑपरेशन नाकाम नहीं हुए। ज़रा स्वात में ऑपरेशन हुआ है, बुनेर में हुआ है, सफाया किया है, बाजवड़ में जो ऑपरेशन हुए थे, जो पहले ऑपरेशन शेर दिल था, क्योंकि बाजवड़ में तो कोई रट हुकूमत की नहीं थी, इस तरह मोमन में रट ख़त्म हो गई थी, ज़रा खैबर एजेंसी में जो ख़त्म हुई थी, तकरीबन कबायली अजला में तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना स्ट्रांग थे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स जो थे हर ज़िले में उनके अपने अमीर होते थे और वहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे, वो हेडक्वार्टर तक जो है उनकी एक्सेस थी, तो उनको फ्लश किया गया था, उनको सफाई हो गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो वापस है। अभी स्वात में, अभी बाजौड़ में जो रिसेंट ऑपरेशन हुआ है, वहाँ भी जरगे ने 10 दिन तक उनके साथ नेगोशिएट किया शिद्दत पसंदों के साथ, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो कहते ये हमारा वो नहीं है, आप बड़ों से बात करें। बड़ों ने कहा कि हम सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। तो क्या उनके जो मुतालबात है वो सुहेल अफरीदी साहब की बस की बात है कि वो मुतालबात मान ले या नहीं? तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हालात ख़राब है। और जिस रफ्तार से अभी जो फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई बुलेट प्रूफ सिस्टम नहीं है, सिर्फ ऑफिसर्स के साथ है, लेकिन जवान जो लड़ने वाले हैं, जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन से, कोई भी बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ न बिल्डिंग है, न उनके पास गाड़ियां हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की, उन्होंने कहा हम नहीं लेते। बाबा ना ले तो क्या होगा, अपना खुद तो करे ना, तो ना खुद गाड़ियां दे रहे थे। और अक्सर मैं ये कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है बड़ी जवान मर्दी से, स्पेशली जवान और इवन ऑफिसर्स भी बड़ी जवान मर्दी से लड़ते हैं, लेकिन दे आर सिटिंग डक्स। ना उनके पास असलहा है सही उनके मुकाबले का, ना उनके नाइट विजन कोई सिस्टम है उनके पास, ना स्नाइपर्स है, ना उनकी गाड़ियाँ हैं। वो डालो शालो में ख़तरनाक एरिया में जाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं उस पर हमला हो जाते हैं और 2, 3, 4, 5 खबरें आ रही है कि इतने वो शहीद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब को ये फैसला लेने से पहले खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को स्ट्रेंथन करना होगा, CTD को मजबूत बनाना होगा, उनको गाड़ियाँ देनी होगी, उनको असलहा देना होगा, तब जाके आप जो है ना ये बातें कर सकते हैं कि मेरी पुलिस डेफिनेटली मजबूत है, लेकिन उनके पास असलहा नहीं है, उनके पास गाड़ियाँ नहीं है, उनके पास कम्युनिकेशन इक्विपमेंट नहीं है, तो इनका मुकाबला एमी जो है ना दुआओं से या सियासी बयानबाजी से नहीं हो सकते। तो ये बात है। बाजौड़ में जिस तरह हुआ, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है कि काफ़ी हद तक वो इलाके जो थे मामून के वो साफ किए गए हैं, लेकिन अभी यह है कि ऑपरेशन मसले का इसलिए हल नहीं है कि पोस्ट ऑपरेशन जो रिहेबिलिटेशन होती है, पोस्ट ऑपरेशन जो कार्रवाई होती है, फिर वो भी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं करते, और यही वजह है कि हालात हमसे ख़राब हो जाते हैं और दोबारा वो चल ना हमने वो रिफॉर्म्स किए, यहाँ तक कि ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वहाँ पे पुलिस पे कोई तवज्जो दी, ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया, ना जुडिशल रिफॉर्म्स के। तो मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन के बाद जो ज़रूरियात होती है उसको भी फोकस करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि कल दोनों में क्या नतीजा आएगा, उसके बाद उस पर बात करेंगे कि खैबर एजेंसी के जो अमन जरगा है उसी हवाले से जब होगी तो डिटेल पर उस पर डिस्कशन होगी, और इस तरह इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के क्या नतीजे आते हैं उस पर आप लोगों के साथ दोबारा इंशाअल्लाह कल उस पर हफ्ते के रोज़ जो है एक व्लॉग करेंगे।